So students, today we are going to study a topic named voice. What is voice? It is a term actually which is used to describe whether the given sentence is either active or passive. Active. What is active voice? First, we will know that there are two types of voice. Active voice and passive voice. Active voice. Here, the subject is focused. Subject को हम focus करते हैं. Subject is focused. अब हम पहचानेंगे कैसे कि which is the subject in the given sentence. अब इनमें से कौन सा सब्जेक्ट है हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. Let's take an example. She reads newspaper. This much. She reads newspaper. Here it is the subject, it is the verb, and it is your object. So why we take she as a subject? She को हम लोग subject के रूप में क्यों लेते हैं इस sentence में? Because पूरा सेंटेंस जो है वो शी पे फोकस्ड है कि आखिर वो कर क्या रही है, वो क्या करती है. तो वो न्यूज़पेपर पढ़ती है, तो ये वह न्यूज़पेपर पढ़ती है, इसलिए इस पे फोकस्ड है और ये हमारा सब्जेक्ट होगा. व्हेन वी कन्वर्ट एक्टिव इनटू पैसिव और पैसिव इनटू एक्टिव, we should know the three terms in the given sentence. First is your subject, second is your verb, and your object. SVO, subject, verb, and object. The subject in the active voice becomes the object in the passive voice, and the object of the passive voice becomes the subject of the active voice. Passive voice. This sentence is in active voice. And when we convert it in the passive voice, it will convert as newspaper is read by her. न्यूज़पेपर यहाँ पे एक्टिव में ऑब्जेक्ट था और जब हम इसे पैसिव में लेकर के आ रहे हैं तो न्यूज़पेपर हमारा बन जा रहा है सब्जेक्ट, और यहाँ पे शी सब्जेक्ट है. शी को कन्वर्ट करके हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया हर. तो जैसे यहाँ पे हम देखेंगे सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है, कुछ सब्जेक्ट्स जैसे नेम वगैरह है तो उसमें जनरली हम चेंजेस नहीं करते हैं. कुछ जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं उनको जब हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट में तो ऑब्वियसली उसमें कुछ चेंजेस आएंगे. जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था शी विल कन्वर्ट एज हर, ही, हिम, वी, अस, आई, me, you. It will not convert or not change. They, them, we, us, who, whom. So these subjects when become object, they will conversion I'm writing here, they will convert as she becomes her, he, him, we, us, I, me, and so on. So one more point we have to remember,
एक और पॉइंट आपको याद रखना होगा, दैट इज ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। मेन वर्ब का हम लोगों को क्या करना है, थर्ड फॉर्म लेना है, विच इज कॉल्ड V3, थर्ड फॉर्म ऑफ योर वर्ब, इसको लेना है। एंड वन मोर थिंग, यूज द suitable helping verb, helping verb. Once again, coming here in our example, here this sentence is in present simple present. We have not used here any helping verb, is, am, are, was, were, has, have, whatever. But when we convert it into the passive form, we have taken a helping verb. This is the main thing you have to remember. First, convert the verb into its third form and use the suitable helping verb. Because newspaper is here, we take as a singular form. So, we use here is. If we, then are. And this way you may convert the active into passive. According to tense, we shall study in our next session how we convert the different tenses in different forms and active to passive. We will discuss about it in our next session. Thank you. So once again, we shall discuss the main points related to conversion of voice, active to passive or passive to active. First of all, we have to identify subject, verb and object of the given sentence. Subject क्या है? Subject जिस पे पूरा sentence focused रहता है कि वो क्या कर रहा है, क्या कर रही है, वो कुछ भी हो सकता है, वो सिर्फ लिविंग थिंग्स नहीं हो सकते, नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट, देन वर्ब। वर्ब जो क्रिया है, मतलब जो काम हो रहा है, हमारा एक्शन वर्ड्स जो होता है, जो हमारे एक्टिविटी को शो करता है, वो वर्ब है। और ऑब्जेक्ट क्या है, जो सब्जेक्ट को सपोर्ट करे कि वो कर रही है, अगर वो काम कर रही है तो क्या काम कर रही है, अगर वो पढ़ रही है तो क्या पढ़ रही है, मतलब वो एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट है वॉइस से रिलेटेड, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, मतलब जो एक्टिव वॉइस में जिसको हम सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं, दैट विल बी टेकन एज ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा क्या हो जाता है, उसमें सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जब भी हम कन्वर्शन करते हैं एक्टिव से पैसिव में, तो हमेशा वी हैव टू यूज, हम लोगों को यूज करना है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का थर्ड रूप, जिसको हम लोग V3 के नाम से जानते हैं। यूज सूटेबल हेल्पिंग वर्ब्स। जब एक्टिव से पैसिव में कन्वर्जन होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, उसमें सूटेबल हेल्पिंग वर्ब is, am, are, was, were, has, have, had and so on, इस तरह से हमको उसमें चूज करना पड़ता है। नेक्स्ट इज कन्वर्शन इज बेस्ड ऑन टेंस। ऐसा नहीं है कि व्हेन वी कन्वर्ट एक्टिव इनटू पैसिव ऑल विल फॉलो द सेम पैटर्न, ऐसा नहीं है। सबको उनके टेंस के अकॉर्डिंग हम लोगों को चेंज करना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। सबसे पहले आइडेंटिफाई क्या करना है कि जो सेंटेंस हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं वो एक्चुअली किस टेंस में दिया हुआ है, और टेंस के अकॉर्डिंग फिर हम लोग उसको चेंज करेंगे। सो अभी हम लोग अब इसको टेंस के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना सीखते हैं। सबसे पहले शी ईट्स अ मैंगो, और मैंगो क्योंकि ये सिंगुलर है, इज मैंगो इज eaten by her, eats a mango, a mango is eaten by राम। राम क्योंकि नेम है यहाँ पे,
और नेम का कन्वर्जन अभी हम लोगों ने नहीं देखा था, तो राम एज इट इज रह जाएगा। यू ईट मैंगोज, अगेन मैंगोज आर ईटन बाय यू, क्योंकि यू का कोई कन्वर्जन नहीं होगा। दैट्स ऑल। आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं एक्टिव टू पैसिव सिंपल प्रेजेंट का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मोर अबाउट पैसिव कन्वर्शन एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।